Welcome students with new chapter of geography, life in the desert regions. In this chapter we are going to discuss about the Sahara desert and about the Ladakh. Here Sahara desert is related to hot desert and Ladakh is about the cold desert. In chapter number 16 we have already discussed about the hot desert and cold desert. Here we will read about the lifestyle and the wildlife, about the natural vegetation, what is found in both in cold desert and in hot desert. Okay, here at a glance you can see that the Sahara desert, the climate, vegetation, that you have to read. In Ladakh is also same, where it is located, and lying in the rain shadow of the great Himalayan, and where it is the location, and about the we will read about the climate, about the vegetation. Okay, now let us come to the chapter about the Sahara desert. Where is the location? The Sahara desert, its location means what part it covers. Here covers large parts of Algeria, Mali, Libya, Chad, Egypt, Mauritania, Morocco, Niger, Western Sahara, Sudan and Tunisia. This part is covered, included in Sahara desert. It is bounded by Mediterranean Sea and the Atlas Mountain. You have to remember this one. Bounded by Mediterranean Sea and the Atlas Mountains in the north, the Nile Valley and the Red Sea in the east, the Niger Valley in the south and the Atlantic Ocean in the west. This much you have to read. Okay, now let's see about the landscape. Landscape, here is the some part of the oases are found here. Oasis means where some greenery is there and some ground level water is found, that part is known as oasis. Okay, so in there the largest freshwater lake situated in the desert is Lake Chad. ये आपको याद रखना है. Lake Chad is largest freshwater lake is found here. The rivers Nile and Niger flow along the fringes of the desert. Here you can see these things in this map. In your textbook it is already given properly. Here the picture has not came very proper. You can see in your textbook also. And this much you have to remember, that the Sahara desert is the largest tropical desert in the world. Now come to the climate. अब यहाँ climate कैसे है? The climate is characterized by extreme temperatures, wherein summer temperatures soar to almost 55 degrees centigrade, while winter temperatures drop to 15 degrees centigrade and even reach freezing point. तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर इसलिए कहा गया, समर में बहुत ज़्यादा 55 डिग्री सेंटीग्रेड नियर अबाउट, और विंटर में जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड. और 15 डिग्री सेंटीग्रेड समटाइम्स इट रीच टू फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब बिल्कुल बर्फ़ जमने वाली स्थिति में ये पहुंच जाता है यहाँ ठंड विंटर में. ठीक है. डेज आर स्कॉर्चिंग हॉट वाइल नाइट्स आर फ्रीजिंग कोल्ड. स्कॉर्चिंग मीन्स जलाने वाला बिल्कुल, इतना होती है गर्मी दिन में, और नाइट्स होता है एकदम ठंडी जमाने वाला. हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो अक्रॉस द डेजर्ट रीजन. अब यहाँ पर देखो, रेन बियरिंग विंड्स फ्रॉम द अटलांटिक ओशियन लूज मोस्ट ऑफ देयर मॉइस्चर बाय द टाइम दे रीच दिस एरिया. अटलांटिक ओशियन से रेन बियरिंग विंड्स तो बहती है, लेकिन इस एरिया में आते आते उसकी मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो बिल्कुल ड्राई बन जाता है, जिसके कारण यहाँ वर्षा
नहीं हो पाती है, और जो भी होती है वो बिल्कुल 25 सेंटीमीटर लेस देन होता है और इरेगुलर होता है। तो स्कैंटी रेनफॉल एंड स्कैंटी रेनफॉल होगा तो ऑटोमेटिकली वो एरिया डेजर्ट होगा ही। हॉट ड्राई एंड डस्टी विंड्स, अब ये नाम है, ये याद रखना है, हॉट ड्राई एंड डस्टी विंड्स को यहाँ पर क्या कहा जाता है, ठीक है, दैट इज कामसेन, सिरुको, हरमटन एंड द सीमोन। हाँ, और समटाइम्स सैंडस्टॉर्म ऑल्सो ब्लो हियर आर वेरी कॉमन हियर, ठीक है, ये चीज़ नाम रखना याद कि कौन कौन से विंड्स यहाँ ब्लो होते हैं, उनके नाम, हॉट एंड ड्राई विंड्स। देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी एज वन मूव्स ईस्टवर्ड्स। जैसे जैसे ईस्टवर्ड्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी डिक्रीज होता जाता है। द लीबियन रीजन इज द मोस्ट एरिड एंड अल्जीरिया रिकॉर्ड्स वेरी हाई टेम्परेचर क्रॉसिंग 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये जैसे जैसे ईस्टवर्ड की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, टेम्परेचर हाई होता जाता है, ह्यूमिडिटी भी कम होती जाती है। तो लीबियन जो रीजन है, लीबिया का जो रीजन है और अल्जीरिया जो रीजन है उसको सबसे ज़्यादा एरिड रीजन माना गया है, जहाँ बहुत लेस रेनफॉल होता है और टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, नियर अबाउट 48 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार ये बताया गया है कि 1913 के लगभग जो टेम्परेचर था, ऑफिशियल रिकॉर्ड टेम्परेचर इन द वर्ल्ड 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट हैज़ बीन फाउंड ग्रीनलैंड रैंच, डेथ वैली, कैलिफोर्निया, USA, वहाँ पाया गया था। अब नेचुरल वेजिटेशन, लेकिन अब ये तो कॉमन हो गया उस समय की बात है, आज तो एक सिंपल एरिया में भी जो टेम्परेचर है 50-55 डिग्री आपको देखने को मिल जाएगा। पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर काफ़ी हाई होता जा रहा है। नाउ कम टू द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या है? द डेजर्ट इज होम टू ज़ायरोफाइटिक वेजिटेशन, हमने चैप्टर 16 में भी पढ़ा, ज़ायरोफाइटिक वेजिटेशन आर ग्रोन हियर। अब ये जो वेजिटेशन है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? स्मॉल स्पाइनी कैक्टी bushes and tufts of coarse grass that have adapted well the lack of water by growing long roots, waxy leaves, fleshy stems and spines are found in this area. और ज़ायरोफाइटिक वेजिटेशन में क्या होता है कि लॉन्ग रूट्स होते हैं, वैक्सी लीव्स होते हैं, फ्लैशी स्टेम्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं उसमें। डेट पाम्स दैट ग्रो अराउंड द ओएसिस, दे प्रोवाइड डेट्स फॉर फूड। द सैप इज यूज्ड टू मेक वाइन एंड द लीव्स आर यूज्ड फॉर फोडर टू मेक थैच रूफ्स। अब यहाँ पर डेट पाम्स तो जो ओएसिस है जहाँ थोड़ा पानी मिलता है वहाँ पर डेट पाम्स वगैरह उगाए जाते हैं, और ये जो है इनके जो डेट पम्प्स इनसे वाइन भी बनता है, फिर जो फोडर यूज्ड फॉर फोडर उनकी, और साथ में रूफ बनाने में, उनके जो लीव्स है रूफ्स बनाने में भी काम आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है cactus, acacia and baobab are the main plant species found in Sahara Desert. ये जो plants है cactus, acacia and baobab, लेकिन जहाँ कुछ ओएसिस होता है या तो वहाँ कुछ फ्रूट्स वगैरह थोड़े एग्रीकल्चर किए जाते। डेट पाम ट्रीज इन द ओएसिस इन द सहारा, देखो cactus in the Sahara Desert. अब now come to the wildlife. The animal species have adapted well to the extreme climate conditions. अब उनकी जो एडेप्टेशन है उसी के हिसाब से जिस तरह से एक्सट्रीम कंडीशन होता है। Small desert animal escape the fire's heat by hiding during the day under the stones or burrowing into the soil. दिन के समय जो एनिमल्स होते हैं अपने आप को कैसे बचाते हैं गर्मी से, अपने को स्टोन के अंदर अपने को हाइड कर लेंगे, इस
स्टोन के नीचे या तो बुरों में अपने आप को हाइड कर लेते। दे आर यूजुअली स्विफ्ट रनर्स एंड कम आउट टू फीड एट नाइट। और ये क्या होता है कि जो रात में ही वो निकल कर अपना भोजन खोजते हैं। द कैमल नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल इज ऑल्सो फाउंड इन दिस डेजर्ट। Best example of the animal suited to the environment beside the addax or desert antelope. So these are the animals wildlife are found in there. The other animals found are jackal, hyena, snakes and lizards. Here is, you can see that how the cactus survives in the hot arid conditions of the desert due to the some special features. क्या क्या होते हैं, तो उनके सबसे पहले लार्ज फ्लैशी स्टेम्स होता है, तो दैट स्टेम्स इज यूज्ड फॉर द स्टोर वाटर। स्पाइक्स होते हैं दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, एंड थिक वैक्सी स्किन रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर। ये जो फीचर्स होता है कि थिक वैक्सी स्किन क्यों होती है, तो इट reduces the loss of water, and long shallow roots होते spread over a wide area because they quickly absorb the water before it evaporates। जहाँ भी वाटर रेजिस्टेंस को मिलता है तो उसको क्विकली एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनके एवापोरेशन होने के पहले। अब लाइफ ऑफ द पीपल, कैसा होता है जीवन उनका, तो ड्यू टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लीड अ सेटल्ड लाइफ। एक जगह रहना उनके लिए मुश्किल है। मेनी नॉमैडिक ट्राइब्स ट्रैवर्स द सहारा। However, the most important among them are the Arab Bedouins, in the north, the Berbers near the Atlas Mountains, and the Tuaregs in the southern half. तो ये जो हैं three tribes are found here: Bedouins, Berbers that is found in Atlas Mountains, and Tuaregs in the southern half. ठीक है, these tribal या nomadic tribes are found there. अब जो Bedouins है, Berbers and Tuaregs practice animal rearing, and they move with their herds of camel, sheep, horses and goats in search of water and grass. एनिमल रेयरिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन है, प्रैक्टिस है, लेकिन इनके साथ साथ वे वाटर के सर्च में या ग्रास के सर्च में मूव करते रहते हैं, नॉमैडिक लाइफ सर्वाइव करते हैं। द एनिमल प्रोवाइड देम मिल्क, मीट, हाइड which is used to make tents, belt, water, bags and hair which is used for making carpets, mats and blankets। तो ये एनिमल्स हैं, इनको वो सर्वाइव मतलब रेयरिंग कर रहा है, तो एनिमल की तरफ से उनको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट, हाइड मीन्स उनके चमड़े, फिर उस चमड़े से दे कैन मेक बेल्ट्स, टेंट्स, वाटर बैग्स, बहुत सारी चीज़ें दे आर मेकिंग। फिर कैमल्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। कैमल्स का यूज़ ट्रांसपोर्टेशन में ही होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि उसके जो फीट होते हैं इस तरह से होते हैं बने हुए कि वो जो डेजर्ट में जो सैंडी एरिया में वो धंसते नहीं हैं। फिर पीपल वेयर लॉन्ग लूज वाइट रोब्स टू बीट द हीट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द डस्टी विंड्स। जो लॉन्ग वाइट रोब्स पहनते हैं, झब्बा जैसा वो वाइट कलर का, आपने देखा होगा कि अरबी के जो अरब कंट्री के जो शेख होते हैं वो किस तरह से ड्रेसेस वेयर अप करते हैं, तो सेम उनका ये लोग भी उसी तरह से इस क्यों पहनते हैं, नहीं गर्मी हीट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस नियर द ओएसिस और इन द रिवर वैलीज सच एज द नाइल वैली। अब एग्रीकल्चर होते हैं लेकिन कहाँ, नियर द ओएसिस या रिवर वैलीज के किनारे। वेरियस क्रॉप्स सच एज, अब यहाँ ओएसिस के किनारे थोड़ा एग्रीकल्चर हो रहा है तो कुछ क्रॉप्स भी उगते हैं। वो क्रॉप्स कौन कौन से हैं, मेज, मिलेट्स, wheat, barley, fruits such as figs, dates, apricots, olives grown
The Egyptian cotton grown in the Nile Valley is famous for its long fibers. बहुत famous है. This thing has grown in this area. The Sahara Desert has rich reserves. अब यहाँ पर देखो, हमने क्या देखा कि जो ओएसिस है उस एरिया में थोड़े बहुत एग्रीकल्चर होते हैं, लेकिन दिस डेजर्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस. वो कौन सा एरिया है? लीबिया है, इजिप्ट है एंड अल्जीरिया है. The discovery of oil in this region has led to the migration of the tribal people to various cities so that they can lead a settled life. अब ये जो ऑयल की खोज हुई तो अब ये जो ट्राइब्स थे वो नॉमेडिक उनका लाइफ होता था, अब मतलब चेंजेस आए एंड दे माइग्रेट टू ट्राइबल रीजन टू वेरियस सिटीज़. इन सभी सिटीज़ में वो माइग्रेट होने लगे. तो माइनिंग ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स लाइक कॉपर, आयरन ओर एंड मैग्नीज. अब वहाँ जहाँ पर ये अभी थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर कर रहे थे, एनिमल रेयरिंग कर रहे थे, अब माइनिंग भी करने लगे. क्यों? ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, वहाँ को काफ़ी मिलने लगा. द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अ चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल हु inhabited the region. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो डेवलपमेंट होने लगा, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के कारण, तो इनका लाइफ थोड़ा चेंज होने लगा. जो रीजन में रहने वाले लोगों का जो लाइफ है थोड़ा चेंज होने लगा. ठीक है. Now we will come to the another topic about the cold desert Ladakh.